عدالت نے مجھے 2 لاکھ روپے شیورٹی کے اوپر چائنا جانے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب فیسیلیٹیٹ کریں، تو وہ اٹارنی جنرل صاحب تو ہمیں ملے ہی نہیں، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کورٹس آرڈر کو چھوڑیں، عدالتوں کے آرڈروں کے اوپر نہ جایا کریں، آپ آرام سے ایئرپورٹ جانے کی زحمت نہ کریں۔ تو اس پیغام کے بعد ہم نے کہا چیف جسٹس صاحب کو بتا دیں کہ سر یہ حالات ہیں عدالتوں کے، تو آپ مہربانی کریں ہماری شیورٹی ڈسچارج کر دیں، وہ ہمیں واپس کر دیں، اور اس کے لیے اپلیکیشن دینی تھی، وہ اپلیکیشن دی۔ تو پھر ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ذرا بات ہوئی تھی، وہ آگے تھے تو ان کے ساتھ ذرا گپ شپ تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور پاکستان کے عمومی حالات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، جو ظاہر ہے کہ بڑی فکر مند ہیں ہم۔ اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، مائنس عمران خان اور مائنس پی ٹی آئی کرنے کے اوپر جو 2 سال سے زور لگایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی بھی مائنس نہیں ہو رہی، عمران خان تو اور تگڑے ہو گئے ہیں۔ آج عمران خان کا قد بہت بڑا ہے، 2022 سے دیکھیں اور آج دیکھیں تو عمران خان کا قد بہت بڑا ہے۔ اب اس وقت اگر اس سے زیادہ کوئرژن اپلائی کی جاتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ ہم جو پنجاب ہے وہ شدت پسندوں کے حوالے کر دیں گے اگر مائنس کریں گے پی ٹی آئی، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان نیشنلسٹ الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں ان کے حوالے ہو جائے گا۔ ملک نہیں چل سکتے جس طرح سے آپ نے ڈی چوک میں دیکھا، چیف جسٹس پاکستان کے پتلے کے اوپر جو ہے وہ گولی کا نشان بنا کے کہا گیا جی ان کو یہ جو ہے گولی مارنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے اوپر اتنی باؤنڈری لگا دیں سر کے اوپر۔ اگر چیف جسٹس پاکستان کا یہ حال ہے ملک میں، تو مجھے آپ بتائیں باقی کوئی عام شہری جو ہے وہ کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا؟ یہ جو رویے ہیں اس کے اوپر بہت تشویش ہے، اور شدت پسندی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت تشویش ہے، اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان میں شدت پسندی جو ہے اس کو ایک نیا سیاسی قوت مل رہی ہے۔ اس پہ ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے، اور میری نظر میں اب بھی پاکستان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں، ایک قومی حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے۔ قومی حکومت میں عمران خان، آصف زرداری اور نواز شریف وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامینیٹ کریں، جو نئی آئینی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ایک تو ترتیب دے، از سر نو تشکیل کرے الیکشن کمیشن کی۔ اس کے بعد جو آئینی ترامیم چاہیے، خصوصاً یہ کہ پولیٹیکل پروسیکیوشن نہ ہو، اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف جعلی مقدمے نہ ہوں، اس کے لیے ایک پروسیکیوٹر جنرل کا آفس بنایا جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو کسی کے ماتحت نہ ہو، اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے جس کے نتائج جو ہیں وہ سارے قبول کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، قومی حکومت ہی وہ واحد طریقہ ہے، اور ایک کولنگ آف پیریڈ چاہیے ہوگا جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان تعلقات کار کو بہتر ہونا ضروری ہے، ایک مفاہمتی عمل ہونا ضروری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک مفاہمتی عمل ضروری ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جماعتوں کی طرف ایک مفاہمتی عمل ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کو ہم اسٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف میں آپ کو پتہ ہے کہ اگست میں ہمارا پیسہ ریلیز ہونا تھا، وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا، سپٹمبر میں چلا گیا ہے۔ قومی حکومت بنے گی، وہ آئی ایم ایف کے بھی سارے جو شرائط ہیں اس کو سائن آف کر لے گی، اور پاکستان کو ایک معیشت کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ملے گی۔ سر فواز علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی میں ایک سیاسی پلر کے طور پہ ایک اسٹرانگ جو ہے رہنما کے طور پہ اپنی فرائض انجام دے چکے ہیں، یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی طرف سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے چیئرمین صاحب جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین جو اڈیالہ میں اس وقت قید ہیں، تو آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گرفتاریوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گرفتاریوں سے عمران خان کو آج گرفتار ہیں، سال ہو گیا ہے، عمران خان کی سیاست کو کیا فرق پڑا؟ نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی نے تو دیکھنا یہ ہے، وہ اس وقت وہ پارٹیاں زندہ سیاسی لاشیں بن چکی ہیں جو عمران خان کے خلاف سیاست کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو وہ سیاسی لاشیں ہیں جن کو اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کبھی ادھر پھر رہی ہے، کبھی ادھر پھر رہی ہے، اس کا تو انہیں ٹکا فائدہ نہیں ہو رہا۔ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست تباہ ہو گئی ہے عمران خان کو تباہ کرنے کے چکر میں۔ پاکستان کو نارملائز کریں تو بھی ان سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہے۔
पाकिस्तान का नॉर्मल होना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के अवाम के लिए। सर क्या हमीद चला रहे थे पीटीआई को, तो क्या वाकई फैज़ हमीद चलाते रहे माजी में? सर नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ था कि पीटीआई को जो चलाने वाले हैं वो फैज़ हमीद थे, क्या वाकई में फैज़ हमीद पीटीआई को कह रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज़ साहब चला रहे थे। पीटीआई तो चली जा रही है बल्कि दौड़ी जा रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और उस पर जनाब पूरी मशीनरी लगी हुई है काम से। अच्छा, लीगल एक्सपेक्ट भी बताइए। फैसल वार्डा समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जनरल फैज़ हमीद हों या फिर अभी सुप्रीम डयाला जेल, इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो भी जज हैं ये क्या आज़ाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलाइंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी अलग तहरीर करूँगा, ग्रैंड अलाइंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई को मौलाना फजल रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। पीटीआई की भी इत्तेहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज़ की पीटीआई ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल एक मीटिंग और है, तो इंशाल्लाह अलाइंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई चैलेंज पीटीआई ने आपको जलसे में आने के लिए इत्तेहाद तो ज़रूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आएगा? पीटीआई ने पीटीआई ने दावा दी है आपको जलसे में आने इस हवाले से तो गुफ्तगू होती है। एक सवाल उसकी बेटी ने कुचल दिया, इस हवाले से भी कोई मौक़िफ़ अपनाएंगे? आम शहरी को तो इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ था जहाँ कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी थी और वो कांस्टेबल पे चढ़ा के थे, तो उसको जितना इंसाफ मिला है कराची में भी उतना इंसाफ मिलना है। ये तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, आप बच के निकल जाते हैं। पीटीआई के जलसे में जाए फैज़ हमीद चला रहे थे पीटीआई को, तो क्या वाकई फैज़ हमीद चलाते रहे माजी में? सर नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ था कि पीटीआई को जो चलाने वाले हैं वो फैज़ हमीद थे, क्या वाकई में फैज़ हमीद पीटीआई को कह रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज़ साहब चला रहे थे। पीटीआई तो चली जा रही है बल्कि दौड़ी जा रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और उस पर जनाब पूरी मशीनरी लगी हुई है काम से। अच्छा, लीगल एक्सपेक्ट भी बताइए। फैसल वार्डा समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जनरल फैज़ हमीद हों या फिर अभी सुप्रीम डयाला जेल, इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो भी जज हैं ये क्या आज़ाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलाइंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी अलग तहरीर करूँगा, ग्रैंड अलाइंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलाइंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी अलग तहरीर करूँगा, ग्रैंड अलाइंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई को मौलाना फजल रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। पीटीआई की भी इत्तेहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज़ की पीटीआई ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल एक मीटिंग और है, तो इंशाल्लाह अलाइंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई चैलेंज। पीटीआई ने आपको जलसे में आने के लिए इत्तेहाद तो ज़रूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आएगा? पीटीआई ने दावा दी है आपको जलसे में आने इस हवाले से तो गुफ्तगू होती है। एक सवाल उसकी बेटी ने कुचल दिया, इस हवाले से भी कोई मौक़िफ़ अपनाएंगे? आम शहरी को तो इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ था जहाँ कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी थी और वो कांस्टेबल पे चढ़ा के थे, तो उसको जितना इंसाफ मिला है कराची में भी उतना इंसाफ मिलना है।
ये तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, आप बच के निकल जाते हैं इस तरह। पीटीआई के जल्द में जाए फैज़ हमीद चला रहे थे पीटीआई को, तो क्या वाकई फैज़ हमीद चलाते रहे माजी में? सर नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ था कि पीटीआई को जो चलाने वाले हैं वो फैज़ हमीद थे, क्या वाकई में फैज़ हमीद पीटीआई पहले को कह चलाते रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज़ साहब चला रहे थे। पीटीआई तो चली जा रही है, बल्कि दौड़ी जा रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और उस पर जनाब पूरी मशीनरी लगी हुई है। काम से करिए। अच्छा, लीगल एस्पेक्ट भी बताइए। फैसल वार्डर समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जनरल फैज़ हमीद हों या फिर अभी सुप्रीटेंडेंट डयाला जेल, इसके बाद जिस तरह हमने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो भी जज हैं ये क्या आज़ाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलाइंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी अलग तहरीर करूँगा, ग्रैंड अलाइंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई को मौलाना फजल रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है।